Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter what books and burials tell us, and in this regard we have discussed about the books, how the books which were written around 3500 years ago, they gave us so many informations about the ancient time. And the name of such book is Rig Veda. As we have discussed about Rig Veda, we have seen that who were the composer of the hymns, what was the language of the book, and in we can say in essence what is there in the book. The good book is in book we find there are more than thousands hymns, and these hymns are in the praise of God and goddesses like Agni, Soma and Indra. These are the three gods about which the praising is done in the book. And other than this, everything is in the book is in the form of dialogue. And through these dialogues we come to know so many things about the society. Like in society there was importance of cattle, then horses were also very important. Battles were fought, for what reasons battle was fought, and what was the we can say how was the king. The king was not someone who was having a regular army, who was living in a palace, who was having a capital city. It was not like that. The rulers were just like leaders who were chosen by the people in the assemblies, and their main function was to lead the people in the battle. And then we have discussed how different words were used to describe people. Like there were two different words, like priest or Brahmins and Raja. These two words were formed on the basis of the work people did. And then there were other groups also, like Vish and Jana. Okay, these were the names of the groups, Puru Jana, Yadu Jana. Then we find that there were other categorization also, like those who composed the hymns were known as Aryas, and the opponents of Aryas were known as Dasyus, and these Dasyus were later came to be known as slaves, those who were considered as property of their owner. They were not having their own existence. So we have completed all these discussion, all the informations, all the knowledge we get from this Rig Veda about the life, what type of life was there around 3500 years ago in the northwestern part of the subcontinent, where the rivers Indus, Satluj, Ravi, Jhelum, Chenab and Vyas flow. ठीक है, तो ये सब कुछ हमने कर लिया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू द second part of the chapter. As you can see, the name of the chapter is what books and burials tell us. So we have completed about books, and now we will be doing about the burials. So what do we mean by burials? First of all, you must know the meaning of burial. Burial is when someone dies. What was the practice in the ancient time, that the people who died, they were buried under the ground, and this process was called burial. So burial sites are also a very important source of information for the historians and archaeologists to know about the past. So what we find that you can see the heading which is given in your book is Silent Sentinels, the story of the megaliths.
silent sentinels, the story of the megalith. So here you must understand the meaning of some new words like sentinels. Sentinels are the we can say जो security guard होते हैं, जो प्रहरी होते हैं, जो पहरा देते हैं, they are called sentinels. तो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वर्ड silent sentinels, it is used for what? जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसको क्या किया जाता था, उसको बरी कर दिया जाता था. सपोज दिस इज ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा. अब जिसकी डेथ हुई उसको ज़मीन के अंदर बरी कर दिया गया, ठीक है. अब ये ब्यूरियल साइट्स बहुत तरह के होते थे, उसको अभी हम लोग इलाबोरेट करेंगे. एट प्रेजेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें जो ये वर्ड्स आ रहे हैं सेंटिनल्स, मेगालिथ्स, इसका क्या मतलब है ना. तो ये मान लो यहाँ पर बॉडी को बरी कर दिया है. अब जो बरी किया गया तो यहाँ पर क्या होता था, बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर्स लगा दिए जाते थे ऊपर. ग्राउंड पे क्या किया जाता था कि स्टोन के बोल्डर्स लगा दिए जाते थे. अब ये बोल्डर कई तरीके से अरेंज किए जाते थे, वो हम लोग बाद में वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेगालिथ्स, ठीक है. तो ये जो बोल्डर्स लगा दिए गए, ये पहचान है कि यहाँ पर ब्यूरियल किया गया. दीज बोल्डर्स आर काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि यहाँ पे ब्यूरियल हुआ है. तो इन्हीं बोल्डर्स को हम क्या कह रहे हैं, दीज बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, ठीक है. और इसलिए ये दीज आर द साइलेंट सेंटिनल्स, ये जो खड़े हैं ये पहरेदारी कर रहे हैं, ये ब्यूरियल साइट्स की पहरेदारी करने वाले ये स्टोन के बोल्डर्स हैं. दे आर कॉल्ड मेगालिथ्स. ओके, दिस इज क्लियर टू यू. एंड नाउ वी सी that in many of the burial sites we find that these stone boulders they are carefully arranged. बहुत ही different way में उनको अरेंज किया गया है. एंड इस तरीके से अरेंज किया गया है कि किसी भी ब्यूरियल साइट को मार्क किया जा सके, पता चल सके कि किसकी कौन से फैमिली की कौन सी ब्यूरियल साइट है ना. इस तरह का जो ये मेगालिथ्स बनाने की जो प्रैक्टिस है वो कब स्टार्ट हुई. इट स्टार्टेड 3000 years ago. It started 3000 years ago. आज से 3000 साल पहले ये चीज़ें जो हुई वो शुरू हुई. और ये कहाँ पर ये प्रेवेलेंट था, ये प्रैक्टिस कहाँ पर होता था. द प्रैक्टिस वॉज प्रेवेलेंट इन डेक्कन. डेक्कन क्या हुआ, जो हमारा साउथ का पोर्सन, ठीक है, डेक्कन. और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी ये प्रैक्टिस जो थी वो अपनाई गई थी, ठीक है. सो द प्लेसेस इज द डेक्कन, South India, and then Northeast and Kashmir. Northeast India and Kashmir. So these are the places where this type of burial sites we find, जहाँ पर के स्टोन बोल्डर्स से उसको आइडेंटिफाई किया जाता था. एक बहुत ही अलग अलग पैटर्न में उनको अरेंज किया जाता था, जिसके बारे में जिसको भी हम लोग वी आर जस्ट नाउ गोइंग टू डिस्कस इट. सो व्हाट वी फाइंड दैट देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स. बहुत ही अलग अलग तरह के मेगालिथ्स होते थे. इनमें जैसे वी कैन सी दैट देयर वर सम मेगालिथ्स विच वर जहाँ पर कि सरफेस पे था, है ना. सम मेगालिथ्स वी कैन सी ऑन द सरफेस.
while other megalithic burials are underground. तो ये दो तरह के हम कह सकते हैं, कुछ जो थे वो सरफेस पे होते थे और कुछ अंडरग्राउंड होते थे, है ना। मेगालिथ्स on the surface, मेगालिथ्स अंडर द ग्राउंड, है ना। इसके अलावा जो स्टोन बोल्डर्स रखे जाते थे, द स्टोन बोल्डर्स विच यूज्ड टू बी पुट ऑन द burial sites, that their pattern was also of different types. Like sometimes archaeologists find a circle of stone boulders. Okay, कभी कभी जहाँ पे burial किया गया है उसके ऊपर जो हमारा सरफेस है उस पर क्या है, सर्कल है स्टोन बोल्डर्स का, इस तरह से सर्कल बना हुआ। समटाइम्स the stone boulders were kept in a form of a circle, while sometimes a single large stone was was standing on the ground. Similarly, there were other type of burials, or we can say megaliths also. Like there is one which is called CIST, CIST. What does this mean? सिस्ट से क्या मीन करते हैं? सिस्ट जो होते थे, सिस्ट जिन मेगालिथ्स को हम कहते हैं, उनमें क्या होता था कि एक पोर्ट होल होता था, ठीक है। These type of megaliths were having a port hole. Now the question is, what do you mean by port hole? Port hole से हम क्या मीन करते हैं? पोर्ट होल जो है इसका ये मतलब हुआ कि एक तरह का ओपनिंग होते थे इन ब्यूरियल साइट्स में, एक ओपनिंग होता था। ये जो ओपनिंग था इससे क्या होता था कि कभी भी इससे अंदर फिर से घुसा जा सकता था उस ब्यूरियल साइट में। ये क्यों किया जाता था, इसके पीछे क्या पर्पस था, वो अभी आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई इट वाज डन। क्योंकि क्या होता था कि एक फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में कहीं कहीं ऐसा मिला है जिसमें पोर्ट होल्स हैं। इसके पीछे पर्पस यही था कि सपोज़ एक फैमिली के जो ओल्डर मेंबर्स हैं वो तो उनका डेथ पहले हो जाएगा, जो यंगर मेंबर्स हैं दे विल डाई लेटर। तो उनका ये एम होता था कि जितने भी मेंबर्स इस फैमिली के जिनका भी डेथ होगा उन सबको एक ही जगह पे बरी किया जाए। सो फॉर दैट पर्पस दिस पोर्ट होल वाज देयर, कि जब भी उस फैमिली में एक फैमिली के मेंबर का जिसको भी बरी कर दिया गया, अब आगे उस फैमिली में जिसकी भी डेथ होगी तो उसकी बॉडी को भी उसी जगह पे उसी साइड पे बरी किया जाएगा। उसी के लिए वो पोर्ट होल दिया है, जो कि एक ओपनिंग है जहाँ से एंटर करके बॉडी को बरी कर दिया जाएगा। सो दिस वाज द रीज़न कि एक ही फैमिली के जो पीपल हैं दे शुड बी बरीड इन द सेम प्लेस, बिकॉज टाइम इज़ डिफरेंट, है ना। टाइम तो अलग अलग होगा, डेथ का बरी का टाइम अलग अलग होगा, लेकिन पोर्ट होल के थ्रू क्या होगा, जो बॉडी है वो ग्रेव में लाई जा सकेंगी। दैट इज़ द रीज़न पोर्ट होल्स वर देयर। और उसमें जब उसकी सरफेस पे जो स्टोन के सर्कल या बोल्डर इस तरह से बना दिए जाते थे जो कि साइन पोस्ट की तरह काम करते थे। साइन पोस्ट, व्हाट डज इट मीन? साइन पोस्ट का मतलब हुआ कि एक तरह का हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो ब्यूरियल साइट है ये इस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, हमने अपनी एक साइन पोस्ट लगा दी। तो एक जो बोल्डर्स को जो अरेंज किया जाता था वो इस तरीके से किया जाता था कि उसको पहचानने में आसानी हो, आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो कि यही वो
ब्यूरियल साइट है क्योंकि हम जिसमें हमारी फैमिली का मेंबर बरी किया गया है। तो जब भी हमें किसी भी फैमिली मेंबर को बरी करना हो तो फिर हम उसी ब्यूरियल साइट में जाएंगे, है ना। तो दिस वाज द एम। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही कई सारे अलग अलग तरह से ये ब्यूरियल साइट्स जो है वो बनाए जाते थे। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, जब किसी को बरी किया जाता था तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी ही बरी होती थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेड बॉडी के साथ साथ और भी चीज़ें डाल दी जाती थी। जैसे पॉट्स हैं, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स जो हैं वो रखे जाते थे। उसके अलावा टूल्स हैं, वेपन्स हैं जो कि आयरन के बने होते थे। एंड कई सारे ऐसे भी ब्यूरियल साइट्स मिले हैं जहाँ पर कि आर्कियोलॉजिस्ट को स्केलेटन मिला है, हॉर्सेस का स्केलेटन मिला है, हॉर्स इक्विपमेंट्स मिला है। देन ये पता चलता है कि हॉर्स का अगर स्केलेटन मिल रहा है तो इंसान के साथ जो जिसकी भी डेथ हुई उसके साथ साथ हॉर्स को भी बरी कर दिया गया, है ना। तो हॉर्स का भी स्केलेटन मिला है और इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं स्टोन और गोल्ड के। तो ब्यूरियल में ये कॉमन फीचर था उस समय का। 3000 ईयर्स अगो जहाँ भी हमें ब्यूरियल्स मिल रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें हुआ करती थी कि इंसान के साथ साथ डेड पर्सन के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी साथ में बरी कर दी जाती। आपकी बुक में यू कैन सी पिक्चर इज़ ऑल्सो गिवन, जैसे कि जो स्टोन के बोल्डर्स हैं वो किस तरह से सर्कल में अरेंज किए जाते थे वो दिखाया है। देन जो आयरन इक्विपमेंट्स मेगालिथिक ब्यूरियल से हमें मिले हैं वो दिखाया है। हॉर्स इक्विपमेंट्स हैं, एक्स है, डैगर है, यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। इस तरह के टूल्स और वेपन्स जो हैं वो उसमें रख दिए जाते थे। And now what we find that these burials also gave us some information about the social differences which was prevailing in the society. What do you mean by social differences? It means that in society all the people were not having same status and same kind of they all were same. No, it's not like that. There was difference between the status of the people. There was gap between the status of the people, and this is this can be proved by the excavation of the burial site. What we find that the objects which were buried with the dead person, these objects indicate the social status. What we see that sometimes more objects are found in one grave than in another. More objects are found in one grave than another. What does it mean? It means that in the grave in the grave in which we find more objects, it means that the grave belongs to someone who was holding a higher status in the society. Whereas if we find a burial site where very few objects are there with the dead person, it means that burial site belongs to such person who was having lower social status, है ना. So what we find in Brahmagiri, you will see it is given on map number 2. It is पेज नंबर 14 जो कि हमारे सदर्न रीजन में है, साउथ इंडिया में ब्रह्मगिरी है. वहाँ पर हम जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिगिंग किया है, एक्सकवेशन किया है, तो उसमें उनको एक ऐसा स्केलेटन मिला है जिसके साथ 33 गोल्ड के बीड्स मिले हैं, 2 स्टोन के बीड्स हैं, 4 कॉपर के बैंगल्स हैं एंड 1 कॉन्च का सेल है. तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर किसी इंसान को बरी किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई स्पेशल इंसान होगा, उसका स्टेटस ऊपर होगा, क्योंकि बाकी किसी भी ब्यूरियल में, बाकी किसी भी ब्यूरियल साइट में इतने ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले हैं उसी ब्रह्मगिरी में, है ना. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इससे हमें पता चल रहा है कि सोसाइटी में
सोसाइटी के अंदर सोशल डिफरेंस जो था वो मौजूद था, है ना, क्योंकि एक स्केलेटन है जिसके साथ इतनी सारी 33 ये गोल्ड बीड्स है, आई विल राइट इट डाउन, 33 gold beads, then 2 stone beads, then 4 copper bangles, ओके. सो इतने सारे जो चीज़ें मिली हैं, एंड वन कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर. It denotes that the person who was buried with so many objects, he must be having some social status, and other skeletons have only a few pots. Okay, so it indicates there was difference in status among the people who were buried. Some were rich, some were poor, some were chief, some were followers. Okay, so we have done this, and now we will see that we will discuss about a special burial at इनाम गाँव. इनाम गाँव जो साइट है, उस इनाम गांव में हम लोग देखेंगे कि एक स्पेशल ब्यूरियल किया गया था, उसके बारे में जानेंगे. A special burial at Inam Gaon. So this place Inam Gaon, it is also a site which is presently in South India, and we find that this site is on the river Gold. This river Gold, it's a tributary of the Bhima. Bhima is also the name of the river. So, river Gold is the tributary of Bhima. Okay, so this Inam Gaon is situated on the bank of river Gold, which is the tributary of Bhima, and this place was occupied between 3600 to 2700 years ago. Between 3600 to 2700 ईयर्स अगो. इस समय में ही ये चीज़ें जो यहाँ पर मेगालिथ्स का हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं इनाम गाँव के स्पेशल ब्यूरियल के बारे में, तो ये प्लेस जो था वो उसमें लोग जो रहते थे इसी पीरियड के बीच में, पीपल यूज टू लिव इन दैट प्लेस. और यहाँ पर जो जब भी डेथ्स होती थी एडल्ट्स की, तो उनको बरी किया जाता था ग्राउंड में, एंड स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बरी किया जाता था, और हेड जो होता था उनका नॉर्थ की तरफ होता था. ठीक है, उनके हेड को ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में रखते थे. कभी कभी कुछ ब्यूरियल्स जो थे वो हाउस के अंदर भी मिले हैं. मोस्टली हाउस के बाहर में ब्यूरियल होता था, ग्राउंड में होता था, बट कुछ ब्यूरियल्स घरों के अंदर भी मिले हैं. और कई बार जो ब्यूरियल्स किए गए तो उसमें ब्यूरियल्स के साथ साथ कुछ वेसल्स जिसमें कि फूड और वाटर के साथ उसको बरी किया जाता था. ऐसे क्योंकि इन सब के पीछे मेन रीज़न यही है कि उस समय जो लोग थे, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, एंड they were of the opinion that if there is life after death, then the dead person will need some
food to eat, some water to drink, they will need so many, मतलब उन अपने हिसाब से उनको जो भी चीज़ें लगती थी कि इंसान को ज़रूरत होगी वो सब कुछ उसके साथ वो डाल देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही एक ब्यूरियल जो है वो इनाम गांव का मिला है, जहाँ पर ये देखते हैं कि द मैन वॉज बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। एक घर है जिसमें 5 रूम्स हैं। ये सबसे बड़े हाउस में से एक है। इनाम गांव के में इतना बड़ा हाउस और नहीं था, इस तरह के हाउस बहुत ही कम थे। ये सबसे बड़े हाउसेस में से एक है जिसमें कि 5 रूम्स थे। इस 5 रूम्स वाले हाउस का जो कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड आई टोल्ड यू व्हाट इज़ कोर्टयार्ड, जो बीच का पोर्शन होता है, आंगन है ना, आंगन इज कॉल्ड कोर्टयार्ड। तो ये 5 रूम वाला जो घर है उसका जो कोर्टयार्ड है, दीज आर द रूम्स, बिकॉज ये ठीक है। अब ये जो इनका कोर्टयार्ड है, इस कोर्टयार्ड में एक ब्यूरियल जो है वो किया गया था। और ये जो ब्यूरियल किया गया था वो कैसे किया गया था, एक लार्ज 4-legged क्ले जार में। क्ले का जार है 4 लेग का, ठीक है। ये क्ले का जार है जिसके 4 पैर हैं। इस क्ले के जार में उनको बरी किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम ये भी देखते हैं कि ये जो बरी किया गया है वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, जैसे बाकी सारे बॉडीज़ जो मिले हैं ब्यूरियल साइड से उसमें बॉडी स्ट्रेट है, बट यहाँ जो ब्यूरियल किया गया है इसमें लेग्स जो है वो क्रॉस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कुछ स्पेशल था, बिकॉज ये जो इतने बड़ा हाउस भी कहीं नहीं मिलता, और ये हाउस पूरे जो इनाम गांव जो सेटलमेंट था जहाँ पे लोग रहते थे, उस पूरे सेटलमेंट के बिल्कुल सेंटर का ये लोकेशन था। इस घर का सेंट्रली लोकेटेड था। इसके अलावा इस हाउस में एक ग्रैनरी भी था। ग्रैनरी क्या हुआ, ग्रैनरी जैसे जहाँ पर अनाज रखते हैं, जब फार्मिंग होती है बहुत सारे अनाज होते हैं, ग्रेन्स होता है, तो फिर ज़्यादा जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको ग्रैनरी में रखा जाता है। तो इस हाउस में ग्रैनरी भी मिला जो कि और किसी हाउस में नहीं मिला। तो इस बात ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट ये जो हाउस है, ये जो ब्यूरियल है जो कि एकदम कोर्टयार्ड में किया गया है, जो घर एकदम सेंटर में सबसे बड़ा घर है, इसमें ग्रैनरी भी है, ये किसी चीफ जो उस इनाम गांव के रहे होंगे, ये उनका घर है, ये उनका ब्यूरियल है। इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हालांकि इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं पता चला है, बट जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो क्लूज़ मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे हम यही कह सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी सम इंफॉर्मेशंस अबाउट स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन जो है वो स्केलेटन से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ब्यूरियल साइट्स, एंड ब्यूरियल साइट्स में क्या हो रहा है, जो लोग हैं उनको बरी किया जा रहा है आफ्टर द डेथ। तो जब हम उसको एक्सकेवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ स्केलेटन मिलेगा। तो उनके स्केलेटन से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। जैसे सबसे पहले तो जैसे एक बच्चे का जो स्केलेटन होगा और एक एडल्ट मेंबर का जो डिफरेंस जो स्केलेटन होगा, वो साइज़ में डिफरेंस होगा, तो वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो स्केलेटन है वो एक गर्ल का है या बॉय का है, मैन का है या वुमेन का है, ये पता करना मुश्किल होता है। कई बार ऐसे होता है ना, मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। Suppose if a skeleton is found with jewelry, so it means that that skeleton is of a woman, है ना। But this is also not this is not a correct way, because it is not necessarily कि women ही ornaments पहनेंगे, men भी है,
वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आज के समय में भी पहनते हैं, पहले के टाइम में भी पहनते थे। तो ये क्राइटेरिया सही नहीं है कि जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है, ये पता करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को देखें। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट क्राइटेरिया। इसके लिए ज़्यादा सही तरीका ये है कि बोन के स्ट्रक्चर को देखा जाए। बोन के स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि वो स्केलेटन मेल का है या फीमेल का है। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, okay? In the next class we will continue with this discussion only.